आज जन्माष्टमी के पावन अवसर पर देश भर में श्री कृष्ण का पूजन कर जन्माष्टमी मनाई जा रही है। इसी के चलते गुजरात के अरवली में स्थित प्रसिद्ध तीर्थधाम शामड़ाजी में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। जैसे ही भगवान शामड़िया के द्वार खुले, श्रद्धालुओं ने कालिया ठाकुर की मंगल दर्शन किए। दिन भर अलग अलग मनोरथ की झलकियां देखने को मिल रही है। भक्ति और उत्साह के माहौल में श्रद्धालु भगवान शामलिया की आराधना में लीन है। सुबह की मंगला आरती के साथ उत्सव का शुभारंभ हुआ और दिन भर भक्ति कार्यक्रम चलते रहेंगे। जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर शामलाजी धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और पूरा परिसर जय श्री कृष्ण के जय घोष से गूंज रहा है। भगवान कालिया ठाकुर में आस्था रखने वाले एक श्रद्धालु ने अपने मनोकामना पूरी होने पर 1.25 किलो का चांदी का छत्र भगवान शामड़िया को भेंट किया। शामलाजी धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और हर कोई भगवान शामड़िया के दर्शन के लिए आतुर नजर आया। અમે લગભગ છેલ્લા 20-25 વર્ષથી શામળાજી દર્શન કરવા આવીએ છીએ અને આ વખત અમારી મનની ભાવના હતી કે અમે 1.25 કિલો 70 શ્રી શામળાજી ભગવાનને આપણે ધરાવીએ અને અમારી મનની મનોકામના બધી પૂરી કરે। અમે દેગામ રખિયાલથી આવીએ છીએ। અમે 25 થી 30 જણા આવ્યા છીએ, આખો 2 ફેમિલી સાથે। આ શામળાજી વિષ્ણુ મંદિર છે, હજારો વર્ષથી છે, સતયુગથી આ જગ્યા છે અને રાજા હરિશ્ચંદ્ર વખતથી છે એવું આખું એને પુરાણોમાં બધી એની વાત છે। અને ઘરે ઘરે ભગવાન શ્રી કાળિયા ઠાકોર શ્રી શામળાજીના દર્શન બધાને થાય એવી ખૂબ સુંદર વ્યવસ્થા કરી છે અને આપણને આશા છે કે ભગવાન શામળિયો સર્વ ઉપર કૃપા કરશે અને દેશને પણ વિકટ પરિસ્થિતિઓ સામને કરવાની શક્તિ આપશે એવી આશા રાખું છું। कनाडा में 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत का राष्ट्र ध्वज और कर्म भूमि कनाडा का ध्वज बड़े सम्मान के साथ फहराया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आई लव गुजरात ग्रुप के मंत्री सुगमेश पटेल उपस्थित रहे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, गुजराती हो, पंजाबी हो, हरियाणवी हो या राजस्थानी, लेकिन सबसे पहले हम सभी हिंदुस्तानी हैं। हमें मिलकर एकता और भाईचारे के साथ जीवन जीना चाहिए। वडोदरा के एसएसजी अस्पताल से लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। इलाज के दौरान 3 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार भरूच जिले के जंबूसर तालुका के 5 पिपला गांव निवासी इरफान भाई की 3 वर्षीय बेटी को बीती रात अचानक उल्टियां होने लगी। परिजन पहले उसे स्थानीय अस्पताल ले गए, लेकिन फिर वडोदरा के एसएसजी अस्पताल के पीडियाट्रिक विभाग में भर्ती कराया। परिजनों का आरोप है कि जब वे अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर और स्टाफ सो रहे थे। काफी बार उठाने के बावजूद उन्होंने जैसे तैसे उठकर इलाज किया, लेकिन जैसे ही परिवार बच्ची को लेकर घर जाने लगा तभी बच्ची की मौत हो गई। जो भाई छोकरी एक्सपायर થયા પછી આ લોકો ટ્રીટમેન્ટ કરે છે એમે આ મેડમ છે આ જર્સીવાળા એ સુઈ ગયા હતા તો કમ ભાઈ કોણ કે ચાલ આઉટ છે 5 વાગે અહીંયા આવી ગયા તો હોસ્પિટલમાં અને અમે આયા ને તે ગઈ ડોક્ટર સુતેલા જ હતા। અમે આવીને ડોક્ટરોને સિસ્ટરને ઉઠાયા અને કીધું કે અમારી બાળકને છે તે વોમિટિંગ બહુ જ થાય છે, તમે ટ્રીટમેન્ટ કરો એમની। તો ડોક્ટર ધીરે ધીરે ઉઠે છે અને કહે છે કે શું થાય છે અને અમને ક્વેશ્ચન કરે છે સામેથી કે તમે આટલા દિવસથી આવીને વોમિટ થાય છે તો તમે ઇમરજન્સીમાં કેમ લઈને આવ્યા। ડોક્ટર અમને ક્વેશ્ચન કરે છે કે ઇમરજન્સીમાં કેમ લઈને આવ્યા, મતલબ કે અમે ભૂલ કરી અહીં લાવીને એમને અમારે લાવવાના હતા, એમને સુવા દેવાના હતા, એવું એમનો મિનિંગ કહેવાનો કે એમને લાવવાના નહીં એવું। અને પછી કહે છે કે સારું ચાલો તમે સુડાઈ દો કે અને ખાલી કશું રિપોર્ટ નહીં ચેક કરતા, નહીં એની હાર્ટબીટ માપતા, કશું ટ્રીટમેન્ટ નહીં કરતા અને ડાયરેક્ટ ખાલી એને એમસેટનું છે ને વોમિટ બંધ થઈ જાય એવું ડાયરેક્ટ એમને ડોક્ટરોએ ઇન્જેક્શન આપી દીધું અને એ ઇન્જેક્શનના ઓવરડોઝથી મારી છોકરી મરી ગઈ। અને ત્યાર પછી ડોક્ટરોએ બી કશું ચેક કર્યું નહીં, એને ડિહાઇડ્રેશન થઈ ગયેલું વોમિટિંગના લીધે, નહીં એમને બોટલ ચડાયા કે નહીં ઓઆરએસનું પાણી પીવડાયું, બસ ખાલી એમને ટેબ્લેટ લખી દીધી, સિરપ લખી દીધી કે આ દવા બારી પરથી દવા લઈ લો અને કે જતા રહો। હું દવા લઈને આવી, મારી છોકરી આમ માથું નાખી દેતી હતી તો બી પછી મેં ફરી લઈને આવી અહીંયા આગળ ડોક્ટરની પાસે। મેં ડોક્ટરોને સામેથી કીધું કે ડોક્ટર એને આવું થાય છે, તમે એને ટ્રીટમેન્ટ કરો, તો ડોક્ટર કહે છે કે ના કંઈ જરૂર નથી। મેં એવું બી કીધું કે ડોક્ટર એને એડમિટ કરવાની જરૂર છે, તો ઉપરથી ડોક્ટર મને ના પાડે છે કે એડમિટ કરવાની બી કંઈ જરૂર નથી। એનો મતલબ કે ડોક્ટરોને ખાલી અહીંયા સૂવું જ છે। 3 વર્ષની છોકરી છે, નહીં એમને ઓઆરએસનું પાણી આપ્યું કે નહીં કોઈ બોટલ ચડાયો, કશું ટ્રીટમેન્ટ કરી નહીં ડોક્ટરોએ, બસ ખાલી અમને દવા લખી દીધી અને સૂઈ ગયા ડોક્ટર। મારું ગામ 5 પીપળા છે અને હું જંબુસરથી વડોદરા ઇમરજન્સીમાં નીકળેલો
અને અહીંયા તાત્કાલિક સારવાર મળે એ માટે હું ડાયરેક્ટ એસએસજીમાં આવ્યો મારી છોકરીને લઈને. એને વોમિટ હતી તે ઘડી એકદમ કમ્પ્લીટ મારી છોકરી હતી અહીંયા. અહીં લાવ્યા પછી ડાયરેક્ટ મેડમ આવી રીતે સૂતા જ હતા. એમને પછી મારી છોકરીને ઓબ્ઝર્વેશનમાં બી રાખી નથી અને એમસેટનું ઇન્જેક્શન આપી અને સીધું કઈ ટેબ્લેટને બધું દવા લખી આપી. મને કે દવા ભાડી હતી, દવા લઈ લો. લઈને આવ્યા. હવે છોકરીને મેં ખભેલી હતી, મારી છોકરી ડોકી નાખી દીધી હતી. પછી એની જીભ પણ એકદમ વ્હાઈટ થઈ ગઈ હતી. તો બી પછી હું એને લઈને પાછો અહીંયા કે મેડમ આટલી બધી કન્ડિશન આની વીક છે અને કંઈ એડમિટ બી નહીં કરવાની કે બાટલ પણ ચડાવવાના નથી. તો મેડમે ના કીધું કે ના કે એ તો થાય કે એવું કે ને પછી એને કે હા થોડી ઓબ્ઝર્વેશનમાં રાખો કે તે રાખીને તરત જ એને થોડી થોડી ખેંચાવા માંડી. હવે 3 વર્ષની છોકરી હતી, કોઈ દિવસ એને ખેંચ નહીં આવી ને જે ઘડી ખેંચ આવી ને ત્યારે બીજી ડોક્ટર એક ત્યાં જ સૂઈ રહી. ખેંચ આવી તો બી ઉઠી નથી અને કોઈ જાતની ટ્રીટમેન્ટ કરી નથી. એટલે મારું કહેવું એ છે કે કોઈ બી બાળક ઇમરજન્સીમાં ગમે તે ગામથી લાવે તો પહેલાં વિચારીને લાવજો. અમારી છોકરી તો ગઈ છે, બરાબર, તમે ધ્યાન રાખજો. દરેક મા બાપને કહું છું કે આવી છોકરીઓ લઈને આવ ફૂલ છે છોકરીઓ છોકરા ધ્યાન મૂકજો. ડોક્ટરો અને સિસ્ટરો બધા સુઈ રહે છે. તદ્દન તાનાશાહી ચાલે છે. સયાજી બનવા આજે અમારું ગયું છે, કાલે કોઈ બીજાનું બી જઈ શકે. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Mulberry Heights 3 BHK and 4 BHK premium flats connecting you to a new way of life. वडोदरा के मोस्ट प्रॉमिसिंग लोकेशन न्यू गोत्री रोड पर आलिशान अपार्टमेंट. यहाँ बना है आपके सपनों का घर. अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स, इंटीरियर एक्सटीरियर वॉल फिनिश और डिजाइनर बाथरूम स्पेशल फैसिलिटी के साथ. मल्टीपर्पज हॉल, AC जिम, स्विमिंग पूल, टेरेस गार्डन, किड्स प्ले एरिया, इंडोर गेम्स, अलॉटेड पार्किंग, CCTV जैसी कई एमिनिटीज. मलबेरी हाइट्स, खुद के घर का खूबसूरत एहसास. मलबेरी हाइट ऑपोजिट दर्शनम क्लब लाइफ, न्यू गोत्री, वडोदरा. कॉन्टैक्ट 9712932205. होटल तारासंस, महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास. ताराज किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट. ताराज कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा. ताराज बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड. तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव. छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार. होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा. Is this the new RUV? Yes, it's the BGR UV 350.
first time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. आज है 16 अगस्त यानी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी, वो दिन जिसका हर भक्त को पूरे साल इंतजार रहता है, क्योंकि ये वही तिथि है जब द्वापर युग में मथुरा की कारगार में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश करने के लिए। और जन्माष्टमी को लेकर पूरे भारत देश में अलग अलग परंपरा दिखाई जाती है, लोग अलग अलग तरीके से इस पर्व का उत्सव मनाते हैं और इसी उत्साह को करीब से महसूस करने के लिए इस वक्त हम आप पहुंचे हैं बड़ोदरा के इस्कॉन मंदिर में, जहां पूरी आस्था और भव्यता के साथ इस पर्व का उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ का नज़ारा देखते ही बनता है। मंदिर परिसर दुल्हन की तरह सजा हुआ है। भजन कीर्तन की स्वर लहरियाँ हर भक्त को भाव विभोर कर रही हैं और श्रद्धालुओं का सैलाब लगातार उमड़ रहा है। आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मंदिर में विशेष फूलों से यहाँ पर इस मंदिर को सजाया गया है और इसी मंदिर में रात 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म अभिषेक और झूलन उत्सव होगा। कहा यह भी जाता है कि इस पवित्र घड़ी में भगवान के दर्शन मात्र से ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यहाँ छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी राधा कृष्ण और गोपियों का वेश धारण किए हुए हैं, जो उत्सव की शोभा को और भी बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर हर इंसान बस श्री कृष्ण की एक झलक देखना चाहता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव है, आज क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे आप VNM सालों साल यहाँ मंदिर में आके जन्माष्टमी का कवरेज करते हैं, तो आप जानते हैं कि ये वडोदरा में सब जन का मंदिर है। समाज के हर स्तर के लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और अपने को धन्य पाते हैं। आज जन्माष्टमी का पर्व है। सुबह 4 बजे की मंगला आरती से लेके अभी तक देखो एक से एक लाइन से लाइन लोग आए जा रहे हैं, दर्शन करते जा रहे हैं, अपने आप को धन्यता प्राप्त करते जा रहे हैं। ये मंदिर में यही है कि सब आनंद से कृष्ण का, जगन्नाथ प्रभु का, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करो, हरे कृष्ण का कीर्तन सुनते सुनते। और आज रात को 12 बजे कृष्ण जन्माष्टमी होगी और आप देखेंगे तो ये बाजू हरिनगर तक, ये बाजू प्रथम तक लोगों की लंबी लाइनें लगेगी, लेकिन हमारी प्रशासन के साथ मिलके, पुलिस के साथ मिलके पूरी व्यवस्था होती है। 4 स्तरीय सिक्योरिटी है, हम वॉलेंटियर लोग हैं, हम लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा मिले दर्शन में और सभी अच्छे से दर्शन पा सके, यही हमारा एक लक्ष्य रहता है। कल पारना है, सुबह से वापस दर्शन चालू होगा, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन चालू रहता है। शाम को 5 बजे सबके लिए भंडारा का आयोजन है, पूरा भोजन का। तो सबको आपके माध्यम से मैं निवेदन करता हूँ कि सब आके प्रसाद पाए, भोजन पाए और सब कृष्ण जन्म का उत्सव मनाए। धन्यवाद। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हर भक्त बस श्री कृष्ण की एक झलक देखना चाहता है। हर किसी की आंखों में अपार प्रेम, आस्था और श्रद्धा नजर आ रही है और ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण की झलक देखकर और खासकर जन्माष्टमी के उत्सव में लोग भावुक तक हो जाते हैं, लोगों की आंखें नम हो जाती है और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। और इस आस्था के सैलाब में उम्र की भी कोई सीमा नहीं है, बच्चे हो या बुजुर्ग, हर कोई यहाँ भक्ति में डूबा हुआ नजर आ रहा है।
और आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ महिलाएं कृष्ण की भक्ति में लीन होकर नाचती और गाती नजर आ रही हैं राधा कृष्ण की धुन पर। चारों तरफ भक्तों की भीड़ है और मंदिर को भी बेहद खूबसूरती के साथ सजाया गया है श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के पर्व पर। आज का दिन बेहद पवित्र है क्योंकि आज मथुरा की कारगर में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इसी के साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने इतिहास रच दिया था, क्योंकि आपने सभी ने उनकी कथा तो सुनी ही होगी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। खुशी इतनी हो रही है, कुछ नहीं कह पा रही, बस हरि को देखते रहो। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि आपकी आंखों में आंसू है, तो ये जो भक्ति है श्री कृष्ण के लिए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भक्ति हरि कृष्ण हरि के बारे में क्या कहना, वो हरि है, जगत करता है, बस कुछ शब्द नहीं, बस खुशी है बहुत। तो जैसा कि आपने देखा श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी ज्यादा शक्ति है कि उन्हें देखते ही उनके भक्तों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और शायद यही वो शक्ति है, वही प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति जो इस उत्सव को और भी ज्यादा भव्य बनाता है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व है, क्या कहेंगे आप? सर्वप्रथम हम BNM न्यूज़ जो हमारे बड़ौदा का एक बहुत ही पुराना चैनल है और जो बड़ौदा के जनमानस के हृदय में है। प्रथम तो मैं आज इस बहुत ही पवित्र दिन जो हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, वैदिक संस्कृति ही नहीं, हिंदू सनातन धर्म का एक जो बड़ा पर्व है भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, जो इस्कॉन मंदिर में मनाया जा रहा है। इस्कॉन मंदिर ही नहीं अपितु पूरे विश्व में इस्कॉन के जहाँ जहाँ मंदिर हैं विशाल जनसमूह है। और सुबह इस्कॉन बड़ौदा गोत्री रोड स्थित 4:30 बजे से सुबह भक्तों का एक बड़ा विशाल समूह आ रहा है। मंदिर 1 बजे तक खुले रहेंगे, सायंकाल 4:30 बजे से रात्रि 1 बजे तक। उसके उपरांत कल मंदोत्सव का दर्शन 7:15 बजे दर्शन होंगे। शाम के जितने भी भाविक भक्त होंगे उनके लिए, सबके लिए भोजन भंडारा का आयोजन किया गया है। पुनः मैं BNM के दर्शकों को और उनके कर्मचारियों को इस्कॉन मंदिर की तरफ से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महोत्सव में सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कई सालों से मंदिर में जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है, तो इसके अंतर्गत हम लोग कृष्ण की झांकी, कृष्ण की लीला यहाँ पे एग्जिबिट करते हैं और सब लोग देखने आते हैं और भगवान का यहाँ पे झूला, कृष्ण की सब लीलाएं दिखाई है हमने, कि ताकि लोगों को पता चले कि कृष्ण की क्या रोल है जीवन में। इसके लिए हम लोगों ने ये बनाया है, पूरा वृंदावन गांव बनाया है। तो जैसा कि आपने देखा, वडोदरा के इस्कॉन मंदिर में आस्था, भक्ति और उल्लास एक साथ मिलकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महापर्व को और भी ज़्यादा विशेष बना रहे हैं। और आज की रात सिर्फ श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात नहीं है, बल्कि एक ऐसी रात है जब हर भक्त की आत्मा श्री कृष्ण की भक्ति में डूब जाती है। और आप सभी को भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए देखते रहिए VNM TV। मुंबई में शुक्रवार रात से तेज बारिश हो रही है। विक्रोली इलाके में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक 213 mm बारिश हुई है। यहाँ जन कल्याण सोसाइटी के वर्षानगर इलाके में विक्रोली पार्क साइट में लैंडस्लाइड हुआ। घटना में 2 लोगों की मौत हुई है।
और 2 घायल है। आज मुंबई समेत राज्य के 5 जिलों में तेज बारिश का रेड अलर्ट है। हार्बर लाइन पर रेलवे ट्रैक पानी में डूबा है। सायन, वाशी, नवी मुंबई समेत कई इलाकों में 2 से 4 फीट तक पानी भर गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकले। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा कैंपस में शुक्रवार शाम 4 बजे एक कमरे की छत गिर गई थी। 12 लोगों को यहां से रेस्क्यू किया गया था। इनमें से 6 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 पुरुष 3 महिलाएं शामिल हैं। वहीं दिल्ली में यमुना का जलस्तर 204.65 पर पहुंच गया, जो चेतावनी स्तर से ऊपर है।